students, in the last class we completed your limitations of planning. As I told you, planning itself is not having limitation, but the planner, the person who is planning, he may have certain limitations. So we discussed that. Now today we are going to learn about the process of planning. The process of planning, there are 8 points, and you are not supposed to break the sequence. Means point 1 will be point 1, point 2 will be point 2. You can't put 1 instead of 2 and 2 instead of 1. For that I have framed one statement. You can use that statement and you can make your own statement, and you can recall points as it is in the examination. Once you recall the points, explanation would be quite easy for you, for most of you. Okay, so let us start with our topic now. Okay students, so today's our topic is process of planning. So to learn this process of planning, the sequence of process of planning, I made one statement. It goes like this. It starts from first word would be your does. I don't know why it is not working. Does. Second word would be corona patient. Second word would be corona patient or COVID patient or COVID expert, not patient. I would use word corona expert. Claim. Third word would be claim. Fourth one, claim that. ठीक है. Fourth word would be patient who is. Fifth word would be eager. Sixth word would be eager to. Sixth word would be select. Seventh word would be facts. Have. Eighth word would be early recovery. Early recovery. So your statement would go like this. Does corona expert who claims that patient who is eager to select the facts have early recovery. अगर ये statement आप learn करो और उसमें जब first word would be D C C P E S F E. This is your, you can say, first words. Then you can say learn the sequence of your process of planning. Let us see how. Let us move further. First is your first point would be your determination of objective. उसके लिए हमने कौन सा word use किया है? Does. ठीक है. Second is your clarifying the planning premises. उसके लिए हमने word use किया है corona patient expert. corona expert. ठीक है. तो corona खाली एक word लिया है. Third is your collection and analysis. उसके लिए हमने word use किया है claim. ठीक है. And fourth was your patient. Fourth word क्या था आपका? Patient. And after that your fifth word would be E. That is, उसके लिए हमने यूज़ किया है eager. Okay. And sixth word is your selection. उसके लिए हमने select ही यूज़ किया है. And seventh के लिए हमने formulation के लिए हमने word यूज़ किया है fact. And E के लिए हमने लिखा है word early. So if you remember this whole statement, तो आपको एक sequence याद हो जाएगा, and you can use this sequence to write your answer in the same sequence as given in the textbook. You are not allowed to change the sequence. Please remember that. You cannot change, like for example, 7th point cannot be 8th point, or 8th point cannot go on 6th point. You have to follow the sequence. It is like ABCD. हम उसका sequence change नहीं कर सकते. Okay, so let us start with our topic now. Sorry, your topic for the today is process of planning. हम whenever we make a plan, what is your main aim? It is your main aim is to achieve success. ठीक है. And you cannot achieve success if you are not clear what you want to achieve. So the first point or the first thing is you have to determine your objectives. First point is you determine your objective. Now what is objective? We already know goal, aim, है ना? It may be goal or aim of a individual. Now what would be the goal of
your planning, at the end of the plan, what you want to achieve. For example, I want to increase my sales. इंक्रीज माई सेल्स. मैं सेल्स मैनेजर हूँ और मेरा एम क्या है, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई सेल्स. तो हमें इसी पॉइंट पे पूरा का पूरा यू कैन से प्रोसेस हम लोग समझ लेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट इज योर डिटरमाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव. सो माई ऑब्जेक्टिव, आई हैव डिटरमाइंड दैट आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई सेल्स. आपका ऑब्जेक्टिव वो ये भी हो सकता है, यू वॉन्ट टू अचीव गुड मार्क्स, है ना. अभी आप 12th के स्टूडेंट्स हो तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में आपका क्या होगा, यू विल डिटरमाइन योर objective that I want to achieve good marks. Now the objective which you are deciding, it should be realistic in nature. ठीक है. आपको अपने जो एम है ना, इट शुड बी रियलिस्टिक इन नेचर एंड इट शुड बी यूज ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल knowledge as well as your past experiences. Like for example, my sales was last year, it was 5 lakh. ठीक है. So I want to double my sales and I want to make it 10 lakh. ये प्रैक्टिकल है कि भाई मुझे अपना सेल्स डबल करना है. आई वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स. मैं 5 को 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. बट इफ आई से दैट माई सेल्स इज 5 lakh लास्ट ईयर, it was 5 lakh rupees and now I want to make it 500 crore rupees. It is not impossible but it is not practically feasible in 1 year कि 5 लाख का सेल्स जो है आप 500 करोड़ का कर सको, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, your production capacity and everything is not enough. I don't think that your production capacity would be enough to reach that 500 crore you can say प्लान. अब धीरे धीरे 10 से 20, 20 to 30, दैट इज़ रियलिस्टिक इन नेचर, दैट इज़ प्रैग्मेटिक इन नेचर, है ना. लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम में मेरी मार्कशीट में कोविड, मेरी मार्कशीट में आया है, सबको मार्कशीट मिल गई है. अब मेरी मार्कशीट में 11th की मार्कशीट में आई गॉट 80%. ठीक है. सो आई कैन अज्यूम कि आई विल गेट मोर देन 80%, दैट इज़ 90%. आई वॉन्ट टू अचीव 90%, दैट इज़ रियलिस्टिक. बट द पर्सन हु गॉट प्रमोटेड ड्यू टू कोविड, यू नो वॉट इज़ प्रमोटेड ड्यू टू कोविड. अगर आपकी मार्कशीट में कहीं पे लिखा है ना प्रमोटेड ड्यू टू कोविड, मतलब आप फेल हुए हो, यू एक्चुअली फेल. अगर कोविड का प्रॉब्लम नहीं होता तो आप फेल होते और फिर आप बोलते हो कि आई विल टॉप द क्लास. सो बी रियलिस्टिक. पहले अपने आप को ये प्रॉमिस करो कि फर्स्ट टर्म एग्जाम तक मैं 70 लेके आऊँगा, देन आई विल गो टू 75, देन 85, देन आई विल थिंक अबाउट 95. फेलियर से सीधा 95, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अचीव नहीं कर सकते, येस यू कैन अचीव, बट इट इज़ नॉट रियलिस्टिक. थियोरी में सही लगता है बट रियली मुश्किल है. इट वुड बी लाइक ना समथिंग लाइक मैजिक, कोई जादू ही है जो ऐसा कुछ कर पाए. ठीक है. सो दैट इज़ योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज आफ्टर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, एज आई टोल्ड यू, पहले हमको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है. देन यू हैव टू consider your planning premises. Now planning premises matlab there are two type of factors. One is your internal factors and second is your external factors. ठीक है. इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एम्प्लॉयज़ का इंटेलेक्ट, है ना. एम्प्लॉयज़ इंटेलेक्ट वो आपका इंटरनल फैक्टर्स है. टैक्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. अब मुझे सेल्स बढ़ानी है. For example, I have to increase the sales. So how I will make use of my manpower? That is my internal premises. मेरे मैन पावर को मैं किस तरह से यूज़ करूँ कि मेरा प्रोडक्शन बढ़े और मैं मेरे यू कैन से एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है मेरा, हाउ टू गेट वर्क डन फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दैट इज़ माई इंटरनल प्रीमाइसेस. एक्सटर्नल प्रीमाइसेस वुड बी हाउ टू यू कैन से कोप अप विद द टैक्स स्ट्रक्चर. जैसे गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी निकाला है, तो टैक्स स्ट्रक्चर को कैसे मैं मात दूँ या फिर कैसे मैं टैक्स को बचा के अपना प्रॉफिट बढ़ाऊँ, हाउ वुड आई इंक्रीज माई प्रॉफिट, दैट कम्स अंडर योर यू कैन से एक्सटर्नल प्रीमाइसेस. मैन पावर प्लानिंग में आप इंटरफियर कर सकते हो, टैक्स स्ट्रक्चर में आप कोई इंटरफियर नहीं कर सकते. तो यू हैव टू क्लैरिफाई योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लानिंग प्रीमाइसेस कि भाई इंटरनल फैक्टर्स में किस चीज़ पे मुझे काम करना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे
मुझे किन चीज़ों पे काम करना है, ये यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू डू द फोरकास्ट फॉर दैट। आपको उसकी फोरकास्ट करनी है। इफ़ यू डोंट डू इट प्रॉपरली योर प्लान वुड फेल। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, it is not plan is or planning is not wrong, it is the planner who makes the mistake and turns the plan into a failure. So planner has to make proper analysis of your internal and external factors and he has to find out the best alternatives. Okay, next is your collection and analysis cancel collection and analysis of information. आपने अपने planning premises डिटरमाइन कर लिए, ये दिस आर द प्लानिंग प्रीमाइसेस। अगर सपोज आपकी सब्जेक्ट की बात करें तो आप डिसाइड कर लिए कि मुझे अकाउंट्स में क्या करना है, स्टैट्स में क्या करना है, इको में क्या करना है, बीओ में क्या करना है, ये मेरे 4 प्रीमाइसेस है जिस पे मुझे काम करना है। नाउ यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। किसका डेटा? यू विल कलेक्ट लास्ट ईयर्स पेपर, है ना, लास्ट ईयर के बोर्ड के पेपर, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फिर क्या करोगे, ब्लू प्रिंट, ये सुनो। सो ये सब चीज़ें आप कलेक्ट करोगे। यू विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट की बात करें और अगर मैं अपने मार्केटिंग की बात करूं या फिर सेल्स की बात करूं तो व्हाट आई विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेल्स ऑफ जनवरी, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर फेब्रुअरी, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर मार्च, सेल्स ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, सेल्स ऑफ लास्ट यू कैन से 20 ईयर्स। मैं जितनी पुरानी हूँ सारे डिटेल्स में ले लूँगी। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट where it fluctuated and everything. So first of all I will collect the information and then I will analyze the information कि wherever there was fluctuation what was the reason of that fluctuation. ठीक है, that is your collection and analysis of information. This collection and analysis of information it should be done with the scientific method. हमको अपने विम्स एंड फैंसीज को नहीं यूज़ करना है, वी नीड टू यूज़ द साइंटिफिक मेथड जो फ्रेडरिक टेलर ने कहा है, एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा सो एज टू गेट अगेन प्रिसाइज रिजल्ट। प्रिसाइज रिजल्ट के लिए वी हैव टू डू दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्लान बी। लाइक फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट प्लान कि आई विल गेट 85%, देन आई विल क्लियर माई CPT, देन आई विल बिकम अ CA। ठीक है, यू मेड दिस प्लान, वेरी गुड प्लान, आई एक्सेप्ट दिस। बहुत अच्छा प्लान है कि भाई मैं यू कैन से एग्ज़ाम दूंगा और मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा और आई विल अपीयर फॉर CA। बट ड्यू टू सम रीज़न इफ़ यू डोंट गेट गुड मार्क्स, मतलब यू गॉट ओनली 54% मार्क्स, ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोलती हूँ कि भाई कोई रीज़न से आपको 48% मार्क्स मिले, यू गॉट 48% मार्क्स, और this is not enough to get admission in you can say CA. So what will be your plan B? Well my plan would be I will do some diploma. मैं फिर से एक डिप्लोमा करूँगी, डिप्लोमा के बेस पे, उसी डिप्लोमा के बेस पे डिग्री लूँगी। ठीक है, दैट इज़ माई प्लान बी। गेटिंग फेलियर इन वन एरिया डज नॉट मेक यू अ फेलियर फॉर द होल लाइफ। यू हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड ऑप्शन। सो ऑलवेज देर इज़ अ प्लान बी। हमेशा जब प्लान ए काम नहीं करता तो देन वी हैव द प्लान बी। ठीक है, सपोज रोज़ आने जाने के लिए एक लैडर यूज़ करते हैं हम लोग, वी यूज़ यू कैन से स्टेयर्स, वी यूज़ या फिर जैसे फॉर एग्जांपल प्लान ए ये रहेगा कि आई विल गो बाय लिफ्ट। प्लान अगर लिफ्ट ख़राब हुई तो आई विल गो बाय यू कैन से स्टेयर्स। ठीक है, और अगर स्टेयर्स पे कुछ काम चल रहा होगा तो आई विल यूज़ रोप टू गो अप। ठीक है, तो वी ऑलवेज हैव द ऑल्टरनेटिव प्लान। फायर इंजन जो भी फायर पर्सन होंगे वो लिफ्ट के बाद में स्टेयर्स नहीं होंगी तो कुछ और यूज़ करेंगे। सो यू ऑलवेज हैव टू यू कैन से थिंक अबाउट योर यू कैन से alternatives. You have to prepare your alternatives and each and every alternative should be tried and tested. जो भी alternatives होंगे ना वो उसको आपको ट्राई और टेस्ट किया होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई परचेज, तो आई विल गिव फ्री गुडीज और यू कैन से फ्री सैम्पल्स। उससे मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही है, दैट इज़ माई प्लान ए। प्लान ए क्या था कि आई विल गिव फ्री सैम्पल्स। अगर मेरा प्लान ए सैम्पल देने से भी सेल्स नहीं बढ़ रहा है तो माई सेकेंड प्लान वुड बी गिव 10% डिस्काउंट। That is my second plan. समझ में आया? So I determine the objectives that I will increase the
sales. I clarified the price planning premises, external as well as internal. I collected information and I prepared the alternative plans. Plan as well as plan B. Plan A नहीं काम करता है तो plan B, plan B नहीं तो plan C. ठीक है. Then next would be your evaluation of alternative. यहाँ पर ये alternative अच्छे से आया नहीं है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ है. इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव. तो वॉट एवर योर ऑल्टरनेटिव्स आर देयर, यू वुड डू अ काइंड ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, OR बोलते हैं उसको, कि ये जो ऑल्टरनेटिव्स है, विल इट वर्क, हैज़ इट वर्क बिफोर, एंड फॉर दिस यू विल मेक यूज ऑफ, यू कैन से, यू विल कलेक्ट द डेटा. आप डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर मैथमेटिक्स और statistics का यूज़ करके you will analyze the data and you will you can say evaluate plan A, then plan B, A, B, C, जितने भी प्लान हैं वो आप alternatives को सिलेक्ट करोगे. Now आपने alternatives को you can say studied, आपने ऑपरेशन रिसर्च किया अपना, उसमें से जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट आता है दैट विल बी गिवन एज प्लान ए एंड यू विल सिलेक्ट एज इट एज अ प्लान बी. जिसका रिजल्ट सेकेंड बेस्ट आता है दैट विल बी योर प्लान बी एंड दैट यू विल पुट इट एज सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. तो पहले हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव देख लेंगे. आफ्टर दैट वी विल फॉर्मुलेट एंड इवेल्युएट द सब्सिडरी प्लान. जो भी है हम विल एनालाइज ईच एंड एवरी प्लान विथ प्रॉपर स्क्रूटिनी एंड प्रॉपर यू कैन से केयर. हम लोग बहुत डीप में वो सारे यू कैन से आपके ऑप्शंस है उसको स्टडी करेंगे एंड वी विल इवेल्युएट, यू कैन से योर प्लान ए तो हमने सिलेक्ट कर ही लिया, हियर वी सिलेक्टेड योर प्लान ए, देन वी विल कंसिडर हु विल कम एट एज योर प्लान बी. तो प्लान बी को भी हम लोग अच्छे से वी विल स्टडी विथ स्क्रूटिनी एंड देन formulation and evaluation of subsidiary plan, and at the end we will evaluate overall conclusion of the whole plan and we will make a report. We will evaluate your plan and we will create a report of your plan. जो भी आपने काम किया है स्टेज 1 से और स्टेज 7 तक, उसका एक रिपोर्ट बनाओगे ऑफ इवेल्युएशन एंड यू विल पुट इन फ्रंट ऑफ योर यू कैन से टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. टॉप लेवल के सामने आप जो अपना प्लान रखोगे एंड टॉप लेवल विथ प्रॉपर यू कैन से चैनल एंड प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दे विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर प्लान. ठीक है. आप अपना प्लान ऑफ एक्शन लेके जाओगे एंड दैट वुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द company and that would be after acceptance or rejection that will be implemented by the company. ठीक है. तो this is the process of plan which is followed by each and every company. It should go as it is. ठीक है. So this is all about your you can say process of planning. Now for today's your homework would be आपका होमवर्क रहेगा, सॉरी आपका होमवर्क रहेगा गिव. नाउ लेट मी रिमाइंड यू कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस ही आते हैं, तो प्लीज़ लर्न ऑल द पॉइंट्स वेरी नाइसली. ठीक है. गिव द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड एक्सप्लेन the process of plan. Give the definition of planning and explain the process of planning. ठीक है. Complete this question and send it to me in the form of PDF. Uma, I would Uma and there are certain few more students who are quite regular, so I appreciate all those students for their work. Okay. All of you stay home, stay safe. Goodbye for now, students.